The ship is fitted with a ski ramp which enables a Sea Harrier V STOL fighter aircraft to operate to its maximum payload and range. In addition to a squadron of Sea Harriers, the Virat will carry a squadron of Sea King ASW and Commando helicopters. The aircraft carrier is fitted with a wide array of radar, communications and electronic equipment, as well as anti-aircraft weapons and missiles, which enable the ship and her aircraft to perform over an area of more than 1.5 lakh square nautical miles. And this is the model of the submarine 877 EKM. The Indian Navy submarine Sindhu Ghosh is the newest and most modern addition to the Indian Navy's fleet. Life in a submarine can be tough and demanding, but the hardship and risks are cheerfully borne by the gallant crews who are deeply committed to the vital role they play in India's defense. Defense offshore installations. The last of the naval floats depicts the defense of the offshore oil installations. The float is a near replica of the Hira process platform located about 32 miles south of Bombay. Indian naval ships, submarines, aircrafts and helicopters, along with the Indian Coast Guard, need to maintain constant vigil to protect these installations. Additionally, Marine commandos of the Navy are deployed on the platforms for specific security operations. The float depicts a Sea King helicopter dunking its sonar to locate hostile submarines. And as the Air Force contingent march in, it's over to Colonel Salan. भारतीय वायुसेना हमारे आकाश को शत्रु से मुक्त रखने में मुस्तैद। वायुसेना बैंड धुन विजयी भारत। सजग वायु सीमा प्रहरी। याद है 1965 की लड़ाई, जब इन्होंने अपने साइबर जेट्स को धराशायी कर दिया था, शत्रु के साइबर जेट को। 1971 में नभः स्पर्श दीप्तम आकाश में वीरता से युद्ध किया। इन पर हमें गर्व है। ये तकनीशियन और अन्य कार्मिक हैं, बहुत ही चटके से दाहिने देख किया। स्पिटफायर विमान, आग उगलने वाला लड़ाकू विमान। 5 मार्च 1936 को सबसे पहली उड़ान इसने भरी थी और 1940 में इसे वायुसेना में शामिल किया गया था। अधिकतम गति 448 मील प्रति घंटा थी। बैटल ऑफ ब्रिटेन में बड़ी ख्याति इसे मिली थी और अंतिम उड़ान इसने 1957 में भरी, क्योंकि उसके बाद आधुनिक युग आ गया जेट विमानों का। पिचौरा प्रक्षेपास्त्र दूसरे और तीसरे टेलर पर है, जमीन से आकाश में मार करते हैं, किसी भी शत्रु विमान को नष्ट कर सकते हैं, चाहे नीचे या ऊंचे। लगभग पेड़ की ऊंचाई से लेकर बहुत ही ऊंचाई पर घुसपैठ करने वाले शत्रु के विमान को नष्ट कर देते हैं। और हाँ, प्रक्षेपास्त्र बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में भी काम करते हैं। शत्रु सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को विफल कर देते हैं। और MiG-27 भारतीय नाम बहादुर 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ने वाला ये सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। सभी तरह के मौसम में उड़ान भरकर शत्रु पर मार कर सकता है। विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से लैस तेज गति उड़ते हुए भी निशाने पर ठीक प्रहार। MiG-27 में सही और सरल मार्गदर्शक यंत्र है और इससे शत्रु क्षेत्र में सही रास्ता लेने में कोई कठिनाई नहीं होती। MiG-27 हमारा प्यारा बहादुर दुश्मन का दिल दहला देता है। हमारी भारतीय वायुसेना में अभी आया नया जेट लड़ाकू विमान। भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी युवावस्था में सशस्त्र सेनाओं में रहकर आज भी वही जोश, वही उमंग, वही ऊंचे दर्जे की मार्चिंग कमान कर रहे हैं। सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन कन्हैया सिंह। सीने पर चमकते तगमे, बीते वर्षों में बहादुरी की निशानी है। अपने इन भूतपूर्व सैनिकों पर हमें गर्व है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से कच्छ तक, हर जगह से आए ये भूतपूर्व सैनिक।
और सामूहिक बैंड 10 रेजिमेंटल सेंटर के पाइप्स और ड्रम्स एक साथ अपने ही संग्राम संगीत पर कदम से कदम मिलाते हुए नेतृत्व सूबेदार महितोष पाल, धुन पढ़ते कदम। और अब अंग्रेजी में राजीव मेहरा। The contingent of the paramilitary forces, the nation's second line of defense. The first contingent is the Border Security Force Camel contingent. Contingent commander M.S. Bhatti, deputy commandant. The Border Security Force is the only force in the country to have a mounted wing. Camel-mounted troops have been instrumental in successfully tracking down infiltrators and smugglers operating in the deserts of Rajasthan and Gujarat. The Border Security Force was raised in 1965 and has won numerous decorations and awards, including a Mahavir Chakra and 11 Veer Chakras. A number of decorations and awards, including 1 Mahavir Chakra and 11 Veer Chakras. The marching contingent of the Border Security Force. These Javans from different parts of India epitomize the diversity of the people of India. The contingent commander is R.S. Chauhan, Deputy Commander. Marching in brisk unison to the man. Border Security Force band playing the tune Sher-e Jawan. And on their heels, the Assam Rifles, the oldest of the paramilitary forces, deployed primarily in the northeastern regions in counterinsurgency and for the border surveillance of roads. They are often referred to as Purav Ke Rakshak. The Central Reserve Police Force. This contingent is commanded by V.S. Chauhan, Deputy Superintendent of Police. The CRPF was raised in 1939, and it was in the incidents of 1959 at Hot Springs that they lost 10 men in ambush by the Chinese. That day is observed by all the center and state police forces in the country as Police Commemoration Day. The Indo-Tibetan Border Police Force Band. And this is the Indo-Tibetan Border Police Marching Contingent. Contingent Commander R.S. Patania. The Indo-Tibetan Border Police was raised in 1962 following the Sino-Indian conflict to police the Indo-Tibetan border. The force keeps vigil on the harsh conditions of the high Himalayas. The role played by the anti-terrorist commandos of this force during major international conferences has kept the force in the public eye. And this is the Coast Guard. The Contingent Commander S.C. Tyagi, Assistant Commandant. The Coast Guards were formed in 1978 and have the responsibility of protecting the national interest in the maritime zones of India.
They also protect the vast areas of the country's exclusive economic zone, extending up to 200 nautical miles from the coast. The Central Industrial Security Force Band, playing the tune Dogria. And this is the marching contingent of the Central Industrial Security Force. The contingent commander, D.S. Badva. The force was raised in 1968 to provide better security in public sector undertakings. Today it is employed in 150 important public sector undertakings, a vital role in protecting India's economic interests. 95 personnel have so far been decorated with medals and honors. The Railway Protection Force. A contingent approaching the saluting days, commanded by Rajendra Singh. The Railway Protection Force was formed in 1957 to protect railway property and to ensure the smooth running of trains. Over the years, this force has assumed the proportion of a paramilitary force and looks after vital railway installations. And this is the Railway Protection Force Band. This is the Delhi Police contingent at the bottom of your frame. The contingent commander, Amarjit Singh Chima, Assistant Commissioner of Police. The Home Guards, contingent led by Dalip Singh Parmar, Chief Instructor, Central Training Institute. This year it is the Home Guards from Madhya Pradesh on display. They are one of the oldest Home Guards organizations in the country. The unit was raised in 1947 and have won 2 President's Home Guards and several Disobedience Civil Defense medals for gallantry and 3 medals for distinguished service. They are one of the largest voluntary organizations in the country. Hun Sher-e Jawan. एनसीसी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना 1948 में हुई। इनका मूल मंत्र है एकता और अनुशासन। ये सीनियर अंडर ऑफिसर संदीप अलावल एनसीसी प्रशिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में अवसरोचित गुण का विकास करती है। होनहार युवकों को सशस्त्र सेनाओं में कमीशन ऑफिसर बनाने के प्रोत्साहन। जाट और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का बैंड धुन नीला आसमान। एनसीसी नौसेना विंग के सीनियर डिवीजन कैडेट कैप्टन आर के शिव कुमार नेवल विंग के कैडेट समुद्रगामी बनने का पूरा प्रशिक्षण पाते हैं। नौका खेना, पाल नौका चलाना समुद्र से लगाव पैदा करती है और जल थल नभ सभी जगह है एनसीसी। एयर विंग के सीनियर डिवीजन कैडेट धरती पर उसी कुशलता से मार्च कर रहे हैं जिस कुशलता से नील गगन में ग्लाइडर और हल्के विमान चलाते हैं। कमान कैडेट कॉर्पोरल विशाल पी टुगनाइट। इस समय देश के 10,000 शिक्षा संस्थाओं में एनसीसी है। 11,20,000 छात्र और छात्राएं और आपका चिर परिचित बैन राजपथ पर एक बार फिर बिरला बालिका विद्यापीठ की छात्राएं। धुन है हम सब भारतीय। एनसीसी की सीनियर डिवीजन छात्रा क्रेडिट नागरिक सुरक्षा, प्राथमिक उपचार, रेडियो टेलीफोनी का प्रशिक्षण पाती हैं। कमान सीनियर अंडर ऑफिसर प्रीति देवस। आत्मविश्वास की सजीव मूर्ति।
समुद्री कैडेट कोर, कमांड लेफ्टिनेंट OR मोहनलाल। बम्बई, कोचिन, मद्रास, ऊटी, विशाखापट्टनम, मद्रास में इनकी यूनिटें हैं। स्कूल और कॉलेज की छात्र छात्राएं प्रशिक्षण लेकर समुद्र के प्रति उनका लगाव बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है। 14 GTC और आर्मी मेडिकल कोर का बैंड, धुन है जेहलम। आप देखें और सुने लय और सुरों के कितने ही रूप, पर सब एकाकार एक रूप हो उठे। संगीत का एक पूरा संसार रच दिया है इन वादकों ने। मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य सोशिर वाद्य जिन्हें कहते हैं। सबसे पहले शंख से कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। शंख शायद मानव का सबसे पुराना वाद्य या साज है। बांसुरी, बांकिए, बीन, अलगोजे, शहनाई, तरह तरह के मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य आप रसास्वादन करें इस मिले जुले संगीत का, लय और सुर के अनेकता में एकता के रूप का।
राजपथ पर सुमधुर संगीत की वर्षा करते ये वादक अब इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं और अब आरंभ होती है हमारे देश के जीवन को दर्शाने वाली राजपथ पर वो झांकियां। ये झांकी है असम की। असम जो कि कितने ही जातीय संस्कृतियों का मनोरम समन्वय स्थल रहा है। इस झांकी में आप देखें असम के लोगों की संस्कृति, अनेकता में एकता की भावना की झलक। इसमें असम के पूर्वी भाग के जो मिशिंग, पश्चिम के बोडो, पहाड़ी क्षेत्रों के कार्बी और ब्रह्मपुत्र घाटी के निवासी एक साथ आप देख पा रहे हैं, नृत्य करते, खुशियां मनाते। और ये झांकी है गुजरात की। गुजरात जैसा कि आप जानते हैं अपने पारंपरिक वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग के लिए बहुत मशहूर है। नृत्य करते गुजरात के लोक नर्तक खुशियां मनाते। ये इस समय गौख शैली में नृत्य कर रहे हैं। नक्काशीदार खंबे से बंधी हुई ये रंग बिरंगी मशरू तथा बंधानी साड़ियाँ पकड़े हुए हैं और इसे कहते हैं गौख नृत्य। गुजरात का जो वस्त्र उद्योग है, गृह उद्योग जिसे कहा जाता है, पटोला, बंधानी, चुंदड़ी और वफ्ता, ये सर्वोत्तम और बहुत ही अच्छे कपड़ों में इन्हें माना जाता है। कैसे जहाँ गाँव में लोग नाचते गाते खुशियाँ मनाते हैं, वैसे ही बुनकर किस तरह से कपड़ा बुनते हैं, ये भी आप इस झांकी में पीछे देख रहे हैं। पूर्व में असम, पश्चिम में गुजरात और अब आइए उत्तर में पर्वतों की घाटियों में घुमावदार चढ़ाव उतार पर चलती हिमाचल प्रदेश एक्सप्रेस। झांकी के जो भाव हैं उन्हें रूप दिया गया है एक रेलगाड़ी का। वो छोटी रेलगाड़ी जो पहाड़ों की घाटियों में से होती हुई लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, लेकिन साथ ही उसमें आप देख पा रहे हैं कुल्लू घाटी के नर्तक कुछ डिब्बों में, डिब्बों के बाहर इन दोनों छोटी घाटियों में खासतौर पर इस हिमाचल एक्सप्रेस में इन पर्वत पुत्रों के जीवन को दर्शाया गया है। कितना ही कठिन, कितना ही मुश्किल जीवन हो, लेकिन उसमें भी मस्त रहते हैं हिमाचल के ये लोग। और इस प्रकार हिमाचल एक्सप्रेस सब इंडिया गेट की तरफ बढ़ गई है राजपथ पर, और माइक्रोफोन पर कर्नल सावंत। पहाड़ों से पहाड़ों पर, हिमाचल प्रदेश से जम्मू और कश्मीर,
कश्मीर अपार प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होने के साथ साथ हिंदुओं, मुसलमानों और बौद्धों की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के सुंदर सामंजस्य का प्रतीक है। धर्म में श्रद्धा और धर्मनिरपेक्षता का तालमेल, संस्कृतियों का संगम। साध्वी लल्लदेव जो शैव संत थे, इस समय नंद ऋषि यानी शेख नूरुद्दीन का पालना झुला रही हैं। ये उनके मातृभाव का परिचायक है। श्रीनगर के पास चरारी शरीफ में नंद ऋषि की जियारत या उनका तीर्थ स्थल है, जो अगले भाग में दिखाया गया है। कर्नाटक नृत्य के माध्यम से धर्म में श्रद्धा। पुराने मैसूर क्षेत्र में सोमना कुनीता नृत्य बहुत ही प्रचलित है। सोमा नर्तक नारी जात के संरक्षक मुखौटा पहनकर ग्राम देवी की शोभा यात्रा में इस समय नृत्य कर रहे हैं। अरे यानी ढोल, ढोल को अरे कहते हैं, और तमटे अन्य ताल वाद्य मुखबीन की धुन पर आत्मविभोर है। मध्य प्रदेश बैंगों की बारात। बैगा मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती भाग की आदिम जनजाति है। विवाह के अवसर पर इस जनजाति के लोग दूल्हे और बारात का स्वागत करने के लिए विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं। हाथ में फरसा और विशेष पोशाक, महिलाएं उनके साथ। नगाड़ा और टिमकी साथ साथ। मणिपुर कांगलाशा सबसे आगे सफेद बना हुआ, यह पौराणिक पशु मणिपुर राज्य का चिन्ह है। प्राचीन मणिपुर के योद्धाओं ने शत्रु पर प्रहार करने और आत्मरक्षा के लिए हुएन लालोंग नाम की इस युद्ध कला को अपनाया था और इसमें बड़े पारंगत हैं। थांगता यानी भाला और तलवार विभिन्न तरीके से उसे युद्ध करते दिखाए गए हैं। उनका बड़ा दैत्य राजा और पंजाब लुधियाना जिले में बहुत ही महत्वपूर्ण एक बौद्ध मठ था। हाल ही में खुदाई में बहुत सी चीज़ें वहाँ कुषाणकालीन मिली हैं और उन्हीं की सहायता से यह स्तूप का पुनर्निर्मित रूप प्रस्तुत किया गया है। ये खंभे कुषाण काल के हैं। और यह है राजस्थान की झांकी, जिसका नेतृत्व इस ऊंट पर कर रहे हैं ढोला मारू। बहुत पुरानी कहानी है और राजस्थान शायद आप कल्पना न कर सकें। मीलों फैले थार मरुस्थल में, थार रेगिस्तान में शायद आप ये सोचते हो केवल बालू ही बालू हो। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ के कण कण में लोक संगीत और लोक कला भरी हुई है, जिसका ये नमूना इस समय आप इस झांकी में देख रहे हैं। पारंपरिक पाबूजी के पदगायक और भील नर्तक भी, और ये 13 ताली, ये सब उस थार रेगिस्तान के जर्रे जर्रे में हर जगह प्रतिध्वनित होती सुनाई पड़ती है। वहाँ के गायक जो कि जनजीवन में माधुर्य घोलते रहते हैं। सूखा शुष्क जीवन रेतीले रेगिस्तान का, लेकिन राजस्थान में थार रेगिस्तान के लोग इन्हीं लोक कलाओं के बल पर
अपना मनोरंजन करते हैं। और ये है त्रिपुरा की झांकी। उत्तरी त्रिपुरा के ऊनाकोटी के पास पाई गई 8वीं और 9वीं शताब्दी की जो विख्यात प्रसिद्ध प्रस्तर मूर्तियां हैं वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ऊनाकोटी के पहाड़ों की चट्टानी दीवारों में कई बड़े बड़े शिलाखंड में उनमें ये कुछ आकृतियाँ और उन पर कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। साथ ही गड़िया नर्तक भी अशोकाष्टमी के दिन जो नृत्य वहाँ किया जाता है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन मूर्तियों में भगवान शिव के मुख और गणेश की विशालकाय मूर्तियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं त्रिपुरा की झांकी में, जो कि समय राजपथ पर देश के प्रथम नागरिक सर्वोच्च सेना के सेनापति राष्ट्रपति यानी ज़ैल सिंह के सामने से और उपराष्ट्रपति श्री वेंकटरामन, प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी, अन्य नेताओं, मंत्रिमंडल के सदस्यों, विदेशी मेहमानों जिनमें पेरू के राष्ट्रपति भी हैं, तंजानिया के वयोवृद्ध नेता जूलियस नेरेरे और अपार जनसमूह के सामने से ये झांकियाँ इस समय जा रही हैं। और ये है उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसमें पतित पावनी गंगा का वो रूप दिखाया गया है, जबकि भगवान शिव की जटा से अवतरित होकर माँ गंगा पर्वतों में बहती है। झांकी के दोनों ओर ये मगरमच्छ जो कि कुछ आगे चले गए हैं, जिन्हें गंगा का वाहन माना जाता है। साथ ही ये भी दिखाया गया है कि गंगा में होने वाले प्रदूषण के स्रोत और बाद में गंगा को जिस तरह से साफ किया जा रहा है। और लोक नर्तक उत्तर प्रदेश के नृत्य करते, झूमते, गाते इस झांकी के साथ। और ये दो झांकियां हैं पश्चिम बंगाल से। ये आगे वाली झांकी जिसमें आप गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा देख रहे हैं आप। इसमें गुरुदेव का जीवन दर्शन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। झांकी में ये जो वन्य वातावरण आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे, संगीत, नृत्य, वो दिखाने का उद्देश्य है मानव और प्रकृति की अभिन्नता का प्रतीक। फूलों और तरंगों के माध्यम से यौवन, ओजस्विता और सृजनशीलता के भाव जो हैं वो प्रकट किए गए हैं। ये नर्तक गुरुदेव के गीतों की धुन पर नृत्य कर रहे हैं। वसंतोत्सव बिल्कुल राजपथ पर भी इस समय वसंत रचा हुआ है। वसंत का चमकीलापन इन रंग बिरंगे फूलों के साथ मिलकर सारे वातावरण को लगता है एक ताजगी बख्श रहा हो। और ये पश्चिम बंगाल की झांकी पर भी वही वसंत उत्सव दर्शाया गया है। गुलाल अबीर उड़ाते नर्तक खुशियाँ मनाते हुए वसंत का स्वागत करते। और अब ये झांकी हर्षोल्लास से भरपूर गोवा, दमन और दीव से। गोवा, नीला आकाश, कितने सुंदर लोग हर्ष और उल्लास से भरपूर नृत्य करते हुए। समुद्र, बड़ी बड़ी मछलियाँ, सुनहरी रेत, झूमते हुए ताड़, सैलानियों का मन बरबस मोह लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गोवा के नर नारियों की इच्छा है हंसी खुशी जिंदगी जीने की। गीत, नृत्य, उमंग, उल्लास और आमोद प्रमोद से भरपूर गोवा।
आहार एवं उल्लास। कटाई के बाद आयोजित मेले की शुरुआत के रूप में गर्मा गर्म पकवानों से सजी थालियां, झांकी का मुख्य आकर्षक, उल्लास, अनाज खेत से कटकर खलिहानों में, खलिहानों के बाद घर में। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत इस झांकी में देश में धन धान्य की परिपूर्ण बच्चे राष्ट्र की निधि, इनकी रक्षा हमें अनेक दैत्यों से करनी है। टीका लगाना सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये 6 दैत्य अनेक बीमारियों का रूप है। सिरिंज और इंजेक्शन से टीका लगा करके हम बच्चे को सुरक्षा प्रदान करते हैं और नवजात शिशु की हर कीमत पर रोगों से रक्षा करनी है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत उद्योग का पहिया खींचने की शक्ति और रोमांचक दृश्य। धातुओं के रंगों की पोशाकें पहने कामगार अनेक रूप में नृत्य कर रहे हैं। बड़े आकार के औद्योगिक हथियार, बहुत ही तेज गति से काम, तभी तो हम ऊर्जा पैदा करते हैं, तभी तो शक्ति का उत्पादन होता है। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने इन नेत्रहीन बालकों को विशेष रूप से आज इस समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। नेवेली लिग्नाइट निगम, नेवेली की खुदाई खानों से हो रही है और वहां से भोरे खुरे कोयले निकाले जा रहे हैं। ताप बिजली पैदा करने के काम में इन्हें लाया जाता है। औद्योगिक और कृषि विकास और तेल प्राकृतिक गैस आयोग सागर ज्योति का एक मॉडल है। समुद्र के गर्भ से तेल निकालते हैं। कच्चा तेल निकालने के लिए खुदाई करता हुआ ये प्लेटफॉर्म है। बागवानी निदेशालय केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत फूलों से बनी इस झांकी में रमणीक स्वप्न लोक दिखाया है। बच्चे और प्रकृति के बीच कितना सामंजस्य है। बीचों बीच कल्प वृक्ष है। सूर्य, चंद्रमा, तारों, फलों, प्रकृति के प्रतीक कल्प वृक्ष जो हमें सब कुछ दे सकता है। राजीव Previous years, the focus of the parade shifts from the old to the young, the promise of tomorrow. And here we see the young in harmony with nature. Approaching the saluting base are 6 elephants carrying 24 children between 8 and 15 years who have won national awards for gallantry, bravery and meritorious service in the last year. It is the longest list of 24 children, but they do deserve to be applauded, each one of them. Krishna Burman of West Bengal has been honored with the prestigious Geeta Chopra Award posthumously, and the other Sanjay Chopra Award has gone to Harilal Yadav.
The other award winners are Rani, Deepti, Suresh Kumar, Sudhir Arora, Sajjan Ali, Shiba, Joseph, Pankaj Srivastav, Manish Kumar, Vikas Dattaram, Satam, Subhas, Chittarao, Kanse, Sangeeta Appa Parid, Swati Harish Amrite, Lorimba Sangeeta Devi, Geeta Devi, Lalta Sangha, Lal Kankima, Manjeet Singh, Lalita Panda, Dhirendra Pradhan, Rajendra Gupta and Reena. All children who have reached into themselves for energy and daring, for something larger than themselves, as they ride down Rajpath in this moment of glory. To be greeted, to be saluted by the people of India, the President of India. And as the parade now enters its final phase of children and colour and the promise of tomorrow.